کیا ہے۔ وزیراعظم نے لاہور میں گندم خریداری میں پیش رفت پر ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج پارٹی قائد نواز شریف کو گندم کے بحران کے حوالے سے رپورٹ پیش کریں گے۔ کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس۔ وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، عطا اللہ تارڑ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے، کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ بر وقت پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران متعلقہ حکام سے سوال کیا کہ گندم کی خریداری کے لیے کسانوں کو باردانے کے حصول میں مشکلات کیوں درپیش ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں، افسران گندم کی خریداری کی موقع پر جا کر خود نگرانی کریں۔ وفاقی حکومت پاسکو کے تحت 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد کسانوں کو بھرپور فائدہ پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم نے گندم کی خریداری کے حوالے سے کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی، جو 4 روز میں کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم کو گندم کی خریداری کے حوالے سے پیش رفت پر تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ گندم درآمد سے پیدا بحران تحقیقاتی کمیٹی آج بھی پیش رفت جاری رکھے گی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی صدارت میں گزشتہ روز طویل اجلاس ہوا۔ سابق سیکرٹریز فوڈ سیکیورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور کیپٹن ریٹائرڈ آصف سے پوچھ گچھ مکمل کر لی گئی۔ کمیٹی کسٹم، کراچی پورٹ اور FBR افسران سے تفتیش مکمل کر چکی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کہتے ہیں کہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو طلب نہیں کیا گیا۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے گندم کی درآمد کی مکمل شفاف تحقیقات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کی جائیں اور پیر کے روز حتمی رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے بتایا جائے۔ کسی کمیٹی نے بلایا نہ ہی کوئی نوٹس موصول ہوا ہے۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر رسمی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی نے بلایا تو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی کرپشن نہیں کی، کمیٹی کے بلانے پر پیش ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ تمام افسران موجود ہیں جنہوں نے گندم سے متعلق تخمینہ پیش کیا تھا۔ نجی شعبے کو گندم درآمد کی اجازت 4 سال پہلے دی گئی تھی۔ مظفر گڑھ میں حکومت کی جانب سے قائم کردہ خریداری مراکز ویران ہو گئے۔ کسانوں سے سرکاری ریٹ پر گندم خریدنے والا کوئی نہیں۔ مجبوری کے مارے کسان نجی سطح پر سستی گندم بیچنے پر مجبور ہیں۔ سرکار نے 3900 روپے فی من قیمت مقرر کی، لیکن کسان 3200 سے 3400 روپے فی من بیچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ ایک نیوز عمیر شیخ سے۔ جی عمیر۔ جی بالکل، مظفر گڑھ میں کسان در بدر رول رہے ہیں، ایک سڑک کے کنارے پر گندم بیچنے پر مجبور ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ کی اگر ہم بات کی جائے تو 3900 روپے ریٹ مقرر کیا گیا تھا۔ کسان یہاں پر 3200 سے 3400 کے درمیان فروخت کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک کسان ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید کسان سے بات کر لیتے ہیں۔ بھائی جان یہ دیکھو کہ باہر پڑا ہے، 3200 بھی کوئی نہیں لے رہا، کنک بھی، بھوسا بھی، اور اپنا کھاد کے ریٹ اتنے ہیں، لہٰذا 3900 ریٹ ہونا چاہیے، اس سے کم ہمیں وارے نہیں آتا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ اب آپ کس ریٹ پہ فروخت کر رہے ہو یہاں پہ روڈ پر؟ 3200 3400، وہ بھی نخرے کر رہے ہیں۔ 3200 سے 3400 کے درمیان بھی کوئی خریدار نہیں خرید کر رہا، اور حکومت سے یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، جو ریٹ 3900 روپے مقرر کیا گیا تھا اسی پر یہ۔ پنجاب کے آخری ضلع رحیم یار خان میں بھی گندم کٹائی کا عمل مکمل ہو چکا، لیکن سرکاری طور پر گندم خریدی نہ جا سکی۔ سرکاری طور پر گندم نہ خریدنے کی وجہ سے کسانوں کے لیے گندم محفوظ کرنا چیلنج بن گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رئیس واجد چاچڑ۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ضلع رحیم یار خان میں، جہاں پر گندم کی کٹائی تقریباً 100% جو ہے مکمل ہو چکی ہے، لیکن
गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है गंदम की ख़रीदारी का अमल जो है अभी तक जारी नहीं हो सका, जिसकी वजह से काश्तकार जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना था कि गंदम की ख़रीदारी ना होने की वजह से हमारी गंदम जो है एक तो खुले आसमान तले ख़राब हो रही है, और दूसरी बात यह है कि वो स्टॉक जब करते हैं तो वो जो है गंदम जो है ख़राब होने का ख़दशा भी है। और ओपन मार्केट में जो है पहले तो 2 रोज़ पहले जो है 3400 से 3500 रुपये रेट था, लेकिन गुज़िश्ता एक रोज़ से जो है मार्केट क्रैश हो चुकी है और जो है मार्केट जो है गंदम का रेट 2500 से 2600 रुपये में जो है रहीम यार खान की मंडियों में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से किसान जो है खासा परेशान नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि अब गंदम की कटाई के बाद हमने कपास की फसलें और दीगर फसलें काश्त करनी है, लेकिन गंदम ना बिकने की वजह से, फ़रोख्त होने की वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत पंजाब जो है जल्द से जल्द जो है गंदम की ख़रीदारी का जो है अमल को यकीनी बनाए, ताकि हम जो है मुकर्रर रेट जो है 3900 रुपये पर अपनी गंदम जो है फ़रोख्त कर सकें। जी, अहम दौरे की बात करें, सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। 50 रुकनी वफ़द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ निजी, हुकूमती और पब्लिक कंपनी से शराकतदारी और सरमायाकारी पर भी मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। 50 रुकनी वफ़द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल होंगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने का मिशन। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी, तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए कोशिशां। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। वफ़द सऊदी फरमारवा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 40 से 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिनमें कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल हैं। वफ़द में सऊदी अरब की मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 2 रोज़ क़याम के दौरान सऊदी वफ़द सरमायाकारी के मुतवक्का मौक़ों पर मुज़ाकरात करेगा। मुख्तलिफ निजी, हुकूमती और पब्लिक कंपनियों से शराकतदारी और सरमायाकारी पर भी मामलात का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द वतन वापसी पर सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान आले सऊद से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात गैम्बिया में 15वें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने सऊदीया के विजन 2030 की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ पर गहरी तशवीश का इजहार किया और गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर 5 लाख मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का मंसूबा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजावीज़ की मुखालफत कर दी है। लिखे गए ख़त में कहा गया है कि FBR दूसरे ऑप्शंस पर गौर करे। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए मोबाइल सिम्स ब्लॉक ना की जाएँ। ख़वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। PTA ने कहा कि इस अमल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब और जाफ़र मंदोखेल की गवर्नर बलोचिस्तान तायुनाती की मंजूरी दी। सरदार सलीम हैदर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नरों का तकर्रुर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकर्रुर की मंजूरी दी, जबकि सदर मुमलिकत ने जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के 40वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। नामजद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद, अमीर मुकाम और दीगर शरीक हुए।
फैसल करीम कुंडी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एतमाद करने पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ सूबाई हुकूमत को कि मैं आपका वकील बनकर इस्लामाबाद में आपका मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह वफाक और सूबा मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पे हुई, जिसमें कसीर तादाद में पीपी कारकुनान भी शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसल करीम कुंडी और सलीम हैदर की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार तशक्कुर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है आप बतौर गवर्नर्स विफाक की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेंगे। शुजाबाद में निगरान दौरे हुकूमत में मुल्तान रोड पर करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला फ्लाई ओवर महकमा रेलवे की जानिब से NOC ना मिलने पर ताख़ीर का शिकार है। नामुकम्मल फ्लाई ओवर के बायस ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया। कई बार हादसों में कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ हमजा खान से। जी हमजा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ शुजाबाद मुल्तान रोड पर, जहाँ पर चक आरस के करीब बनाया 95 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला फ्लाई ओवर जो है ताख़ीर का शिकार है। यहाँ पर आए रोज़ हादसात का मामूल बना रहना और जो स्कूल बच्चे जो कॉलेज हैं और जो दफ्तरों को जाने वाले मुलाजमीन हैं उनको काफ़ी खासे परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। एक साल हो गए इसको बनते ये हम सुबह स्कूल आते जाते हैं, यहाँ पे आए रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं। आने जाने में हमें बहुत परेशानी का सामना है। ये बनते रुक गए। हमारे वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। जी बिल्कुल, ये शहरों का भी यही मुतालबा है कि इस काम को जल्द से जल्द जारी किया जाए। जब मेरी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उसका कहना था कि रेलवे जो हुकाम है उनकी जानिब से जो NOC ना मिलना, जिसकी वजह से ताख़ीर का शिकार जो है ये फ्लाई ओवर किया जा रहा है, उनका यही शहरों का मुतालबा है हुकूमत से कि इसको जो नोटिफिकेशन है इसको जारी किया जाए ताकि जो ये ताख़ीर का शिकार है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके, ताकि शहरी जो हैं उनसे अजियत से छुटकारा हासिल हो सके। जी सरपारकर को कराची से मिलाने वाली मेन शाहराह के टंडो अलायार बाईपास के मकाम पर तीनों पुल अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनुमा होने का खतरा है। ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका महकमे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। इस मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे टंडो अलायार से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ राई हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद है टंडोलायार के मेन बाईपास के मकाम पर। ये वाहिद शाहराह है जो थरपारकर को कराची से मिलाती है। मैं इस वक्त जिस पुल के ऊपर मौजूद हूँ, ये पुल जो है वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह इस पुल के ऊपर जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है और उसके साथ साथ ये गड्ढे जो है वो खस्ता हाली जो है वो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है। इस पुल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हेवी ट्रैफिक जो है वो गुजरती है, मगर ज़िला इंतज़ामिया और सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस पुल की तामीर नौ में किसी किस्म की दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अकब में इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पुल जो है वो टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो चल रही है, मगर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इसकी तामीर के लिए किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं देखी जा रही। तो शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी इस पुल की तामीर को जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से शहरियों को बचाया जा सके। जी हैदराबाद में बगैर प्लानिंग के बनाए गए यू टर्न शहरियों के लिए ख़तरे की अलामत बन गए। यू टर्न्स पर इशारे ना होने और स्पीड ब्रेकर की अदम मौजूदगी के बायस हादसात होना मामूल बन गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ अली हमजा जैदी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हैदराबाद के अहम और मसरूफ शाहराह पर मौजूद हूँ जो कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों को हाईवे तक लेके जाती है। कासम चौक के करीब ये शाहराह है। यहाँ पर जो यू टर्न बनाए गए हैं वो इंतहाई नाकिस प्लानिंग से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हादसा जो है मामूल बन गए। इस वक्त भी मैं यू टर्न के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हादसा की वजह से जो यू टर्न की सूरत हाल है वो खराब हो गई है। यहाँ की खूबसूरती के लिए जो गमले लगाए गए थे उन पर गाड़ियां चढ़ गई हैं, टूट फूट का शिकार हो गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाता है कि गंदगी और गलाजत के भी ढेर है। तो हैदराबाद के शहरियों का मुतालका हुक्काम से यही मुतालबा है कि यू टर्न की या तो प्लानिंग की जाए यहाँ पर या फिर यहाँ पर इंडिकेशन की जाए ताकि गाड़ी हादसा का सामना न करना पड़े गाड़ियों को और शहरियों की जिंदगी है वो भी महफूज रह सकें। जी।